Hello everyone. This is the next lecture on distributed operating system. Today we are going to cover case study of World Wide Web. Okay. So WW stands for World Wide Web. A technical definition of the World Wide Web is all the resources and the user on the internet that are using the HTTP. क्या है इसका जो मेन डेफिनेशन टेक्निकल डेफिनेशन all the resources and the users on the internet that are using hypertext transfer protocol is called as World Wide Web. Okay, so World Wide Web, which is also known as web, is a collection of websites or web pages stored in web server and connected to a local computer through a internet. So World Wide Web क्या है जिसको हम web भी बोलते हैं. It's a collection of websites और web pages. और web pages कहाँ store होते हैं? They are stored on web servers. And how they are connected? They are connected to local computer through a internet. Okay. These websites contain text pages, digital images, audio, video. अब हम लोग इंटरनेट नॉर्मली यूज करते हैं तो हम क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं? टेक्स्ट पेजेस होते हैं, उसमें डिजिटल इमेजेस होती हैं, आफ्टर दैट ऑडियो होता है, वीडियो होता है, राइट. यूजर कैन एक्सेस द कंटेंट ऑफ दीज वेबसाइट्स from any part of the world over the internet using their devices such as computer, laptop, cell phone, etc. हम वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर पे बैठे हैं. You can be anywhere on the world. You can access the sites using internet. Okay. अपने कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स पे आप इंटरनेट, अगर इंटरनेट से कनेक्टेड हो देन आप कहीं भी हो, यू कैन एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू कैन एक्सेस एनी साइट्स थ्रू internet. Okay, so the www along with internet enable the retrieval and display of text and media to your device. Okay, so a broader definition comes from the organization that Web Inventor Tim Berners-Lee helped found the World Wide Web Consortium, जिसको हम W3C भी बोलते हैं. ठीक है. The World Wide Web is and the universe of network accessible information and embodiment of the human knowledge. So basically क्या है वर्ल्ड वाइड वेब? क्या है वो खुद से तो बन के नहीं आया, एक ह्यूमन की नॉलेज पे ही वो बेस्ड है ना. सबसे पहले जब इंटरनेट www बना था तो कुछ नॉलेज को यूज करके ही बना था. तो बेसिकली जो वर्ल्ड वाइड वेब है that is ultimately depend on the knowledge of the person, right? So world wide web अपनी मर्जी से नहीं बना है, कुछ नॉलेज इकट्ठी हुई, जो हम बोल सकते हैं कि जो हम ह्यूमन की नॉलेज है उसको इकट्ठे करके ही बनाया गया है ना. वर्ल्ड वाइड वेब अपने आप से तो नहीं बना, कुछ तो नॉलेज पहले गैदर हुई होगी. आफ्टर दैट वी क्रिएटेड द World Wide Web. Okay, in simple terms the World Wide Web is a way of exchanging information between computers on the internet, so tying them together into a vast collection of interactive multimedia connection. After that, World Wide Web, by name the web, the leading information retrieval service of the internet. The web give user access to vast array of documents that are connected to each other by means of hypertext and hypermedia links. So basically hypertext और hypermedia links कौन से होते हैं? जो हम लोग HTTP करके सर्च करते हैं ना अपने कोई भी वेबसाइट है www. उसके आगे HTTPS होता है ना, दैट आर द hypertext. वो मार्कअप, मतलब जो वेबसाइट के नेम है उनको वो एक मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू ही हम उनको एक्सेस करते हैं, राइट. सो बेसिकली ये क्या है? Hyperlinks electronic connection that link related pieces of information in order to allow a user to easy access to them. Hypertext क्या allow करता है? Hypertext allow the user to select a word or phrase from the text and thereby access other document that contain additional information pertaining to that word or phrase. Okay, so hypermedia document feature links to images, sounds, animation, movies. The web operate within the internet basic client server format. Server are computer program. These are the very basic terms. Everyone में and already we covered about client server, ये चीजें हम already जो है वो cover कर चुके हैं. So these are the very basic term. इस case study में हम लोग क्या करने वाले हैं कि web जो हो कैसे आया, राइट वो सारी चीजें हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं. ठीक है. सो हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट विद दिस कॉरेस्पॉन्डिंग टेक्स्ट एंड हाइपरलिंक्स इन रिटर्न इन हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज असाइन्ड एन ऑनलाइन एड्रेस कॉल्ड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है? किसी
पर्टिकुलर एड्रेस को जब जो लोकेट करता है, मतलब हम किसी वेबसाइट को टाइप करते हैं तो URL जो है उसकी हेल्प से ही हम किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को सर्च करते हैं ना. सो ये हो गया URL. ओके, आफ्टर दैट इवेल्युएशन, कैसे जो है वो नेट मतलब www आया था. ओके, so World Wide Web was created by Timothy Berners-Lee in 1989 at CERN in Geneva. Okay, किसने इसको 89 में इसको CERN जिनेवा में CERN एक वो है उस कंपनी, यू कैन से दैट एट CERN in जिनेवा में एक कंपनी है जिसमें टिमोथी बर्नर ली ने इसको 1989 में क्रिएट किया था. ओके, वर्ल्ड वाइड वेब केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ प्रपोज बाय हिम टू अलाउ रिसर्चर टू वर्क टुगेदर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एट CERN. ठीक है, सो बेसिकली क्यों प्रपोज किया था उसने, ताकि जो रिसर्चर हैं दे कैन वर्क एफिशिएंटली और इफेक्टिवली एट CERN. इवेंचुअली इट बिकेम वर्ल्ड वाइड वेब. ओके, द फॉलोइंग डायग्राम ब्रीफली डिफाइन इवैल्यूएशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड. सो वेब 1.0 सबसे पहले आया, आफ्टर दैट वेब 2.0, आफ्टर दैट वेब 3.0. ओके, सो जो वेब 1.0 था जो सबसे पहले बना था उसमें क्या था, स्टैटिक वेब पेजेस थे. जो वेब पेजेस थे उनको हम चेंज नहीं कर सकते थे. अभी क्या होता है, अभी तो डायनेमिक्स है, राइट. ब्रोशरवेयर होता था, मोस्टली पब्लिशिंग होती थी, नॉन कम्युनिटीज जो चीजें होती हैं वो उसमें थी. वेब 2.2 जब सोशल मीडिया आया, ठीक है, उसके बाद कीवर्ड सर्चिंग होने लगी, जो चीजें हमें कीवर्ड सर्च करने हैं वो मिलने लगी. उससे क्या हुआ, जो एक्सपीरियंस था यूजर का वो अच्छा हो गया. उसके बाद टैगिंग स्टार्ट हो गई, राइट. आफ्टर दैट जो वेब 3.0 था इसमें जो हाईली मोबाइल चीजें हैं वो आई, ओपन आईडी आई, आफ्टर दैट सिमेंटिक सर्च आए, आफ्टर दैट माइक्रो ब्लॉगिंग आई. ये सारा जो है ये एक वैल्यूएशन है. वेब 1.2 में पहले कम चीजें थी. कोई भी चीज में ऐसे ही होता है ना, लाइक फर्स्टली पहले कोई भी चीज छोटी होती है, फिर बड़ी होती है, फिर वास्ट होती जाती है, राइट. सेम ही वेब 1.0 से वेब 3.0 तक वो गया है. ओके, आफ्टर दैट दिस इज द आर्किटेक्चर में अलग अलग लेयर्स बनी हुई हैं. जैसे सबसे ऊपर लेयर आता है यूजर इंटरफेस एंड एप्लीकेशन, जहाँ पे एक्चुअली हम लोग काम कर रहे होते हैं. आफ्टर दैट क्रिप्टोग्राफी, ट्रस्ट, प्रूफ, ये सारी चीज़ें जो है मैंने आगे स्लाइड्स में अच्छे से डिफाइन करी हुई हैं. ओके, सो दिस इज द आर्किटेक्चर. सो फर्स्टली इसमें क्या आते हैं, जैसे यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, दिस इज द आइडेंटिफायर्स, सिंटेक्स कौन से हैं, डेटा क्रिप्टोग्राफी कहाँ पे यूज हो रही है, ये सब चीज़ें जो है मैंने आगे डिफाइन की हुई हैं. दैट इज आइडेंटिफायर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, इट इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिसोर्सेज ऑन द वेब. किस लिए यूज होता है, किसी भी रिसोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिस चीज़ को हम सर्च कर रहे हैं उसको किसकी हेल्प से सर्च होती है वो चीज़, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर की हेल्प से. और यूनिकोड क्या है, यूनिकेट कोड मेक इट पॉसिबल टू बिल्ड वेब पेजेस दैट कैन रीड एंड राइट इन ह्यूमन लैंग्वेज. क्या पॉसिबल करता है, जो वेब पेजेस होते हैं, यू नो दैट वेब पेजेस के पीछे कोडिंग होती है ना, बट हम उसको कैसे पढ़ पाते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल बंदा है जिसको कोडिंग की नॉलेज नहीं है, हाउ ही कैन गोइंग टू रीड दैट पेज विद द हेल्प ऑफ यूनिकोड. यूनिकोड क्या करता है, वेब पेजेस को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ताकि हम जो नॉर्मल ह्यूमन है वो भी उसको इजिली अंडरस्टैंड कर सके. ठीक है, आफ्टर दैट XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इट हेल्प्स टू डिफाइन कॉमन सिंटेक्स इन सिमेंटिक वेब. आफ्टर दैट डेटा इंटरचेंज में क्या आएगा, RDF. यहाँ पे आप सारे देख सकते हैं, पूरे आएंगे, ये डेटा इंटरचेंज, ये सिंटेक्स, XML, ये सारा जो मैं यहाँ पे आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ. सो आफ्टर दैट रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क, ये क्या करता है, दिस फ्रेमवर्क हेल्प्स इन डिफाइनिंग कोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फॉर वेब. जो कोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा होती है उसको कौन डिफाइन करता है, दैट इज RDF रिप्रेजेंट डेटा अबाउट रिसोर्स इन ग्राफ फॉर्म. जो ग्राफ फॉर्म में हमें डेटा दिख रहा होता है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क. ओके, आफ्टर दैट टेक्सोनॉमिक्स कौन सी है, RDF स्कीमा. What is RDF schema? This is allow more standardized description of taxonomies and other ontologic constructs. Okay, जो भी standardized descriptions होती हैं उनको जो taxonomies होती हैं हमारी, उनकी जो standardized description होती है वो कौन provide करता है, RDF schema. schema में क्या होगा, एक information होगी taxonomies के बारे में. Okay, after that web ontology language offer more construct over RDF phase. मतलब RDF से भी ऊपर जो कंस्ट्रक्ट होती है चीज, दैट इज वेब ऑन्टोलॉजी लैंग्वेज. इट कम्स इन फॉलोइंग 3 वर्जन. ऑल दैट वेब ऑन्टोलॉजी लैंग्वेज, लाइट फ्रॉम टेक्सोनॉमी एंड सिंपल कंस्ट्रेंट, ऑल DL फॉर फुल डिस्क्रिप्शन लॉजिक सपोर्ट, ऑल फॉर मोर सिंथेटिक फ्रीडम ऑफ RDF.
ओके, डू यू नो ना टैक्सोनॉमीज? टैक्सोनॉमीज आप बोल सकते हैं जनरल मीनिंग में क्लासिफिकेशंस। ओके, किसी चीज की क्लासिफिकेशंस जो होती है वो टैक्सोनॉमीज होती हैं, मतलब उसकी डिस्क्रिप्शन बताएगा, जो क्लासिफिकेशंस हुई है उसकी डिस्क्रिप्शन बताएगा आरडीएफ स्कीमा। एंड जो वेब ऑन्टोलॉजी लैंग्वेज है वो उसके ऊपर है, मतलब उससे ज्यादा वास्ट है वो, ठीक है। After that, rules RIF and SWRL offer rules beyond the construct that available from RDF and आउट, जो मतलब आप बोल सकते हैं एक टाइप के जो रूल्स होते हैं वो किसके अंदर आएंगे, RIF और SWRL के अंदर। ओके, सो प्रूफ ऑल सिमेंटिक एंड रूल्स दैट आर एग्जीक्यूटेड एट लेयर बिलो प्रूफ एंड देयर रिजल्ट विल बी यूज टू प्रूव डिडक्शन। क्रिप्टोग्राफी बेसिकली किस लिए यूज होती है, सच एज डिजिटल सिग्नेचर। क्रिप्टोग्राफी बेसिकली हम बोले तो सिक्योरिटी पर्पज से ही यूज की जाती है, इसमें हम इंक्रिप्शन करेंगे, डिक्रिप्शन करेंगे, सारी चीजें जो है वो क्रिप्टोग्राफी में आ जाएगी। आफ्टर दैट जो टॉप लेयर है जो हम लोग देख रहे हैं, जो यूजर के साथ इंटरेक्शन कराती है, दैट इज यूजर इंटरफेस एंड एप्लीकेशंस। ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड वाइड वेब एंड internet? Some people use the term internet and world wide interchangeably. Okay, they think they are the same thing. No, that www and internet are not same. Okay, internet is entirely different from www. It is worldwide network of devices like computers, laptop, tablets. It enable user to send email to other users and chat with them online. That is internet, right? Sorry, www. But when you have opened a website like google.com for information, I'm really sorry, ऊपर वाला जब हम किसी को ईमेल सेंड कर रहे हैं, राइट, दैट इज मतलब जब हमने एक आदमी से दूसरे आदमी को मेल सेंड करी, राइट, दैट इज इंटरनेट। बट when you have opened a website like google.com for information, you are using world wide web, a network for server over the network. Okay, you request a web page from your computer using a browser and the server render that page to your browser. क्या हुआ, आपने जो वेब पेज के लिए, किसी एक वेब पेज के लिए, कोई भी वेब पेज आप ले सकते हैं, google.com के लिए आपने रिक्वेस्ट किया ब्राउजर से, राइट, ब्राउजर की हेल्प से आपने एक पेज को रिक्वेस्ट किया, जो उस ब्राउजर, जो उस पेज का सर्वर होगा वो उस पेज को आपके ब्राउजर के ऊपर लेके आएगा, राइट। सो आपका कंप्यूटर क्या होगा, क्लाइंट, जिसने एक प्रोग्राम को रन किया और दूसरे कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा, राइट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटरनेट, ओके, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ www. ओके, सो it enable user to send other user and chat with them online. For example, when you send an email or chatting with someone online, you are using the internet. ठीक है, क्लियर ना? आफ्टर दैट www के ऑपरेशंस क्या हैं? www वर्क ऑन क्लाइंट सर्वर अप्रोच। www किस पे काम करता है? क्लाइंट सर्वर अप्रोच पे काम करता है। एंड क्लाइंट सर्वर अप्रोच वी ऑलरेडी कवर्ड इन प्रीवियस वीडियो। क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, क्लाइंट जो है वो किसी चीज के लिए सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है एंड सर्वर जो है उसको रिस्पॉन्स सर्व करता है, राइट। यूजर एंटर द URL ऑफ द वेब पेज इन द एड्रेस बार ऑफ द वेब ब्राउजर, देन ब्राउजर रिक्वेस्ट द डोमेन नेम सर्वर फॉर द IP एड्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू www। दैट होता क्या है, आपने क्या किया, एक एड्रेस डाला, फॉर एग्जाम्पल http://abc.com, आपने जो कोई है एक वेब पेज, उसके लिए रिक्वेस्ट डाला एड्रेस बार के ऊपर। एड्रेस बार क्या है, वेब ब्राउजर का होता है ना एड्रेस बार। जब ब्राउजर को रिक्वेस्ट आएगी, सॉरी, जब वेब पेज की रिक्वेस्ट आएगी तो जो ब्राउजर है वो DNS के पास जाएगा, जो ABC के पेज का IP एड्रेस है उसके लिए DNS के पास जाएगा, और उसकी हेल्प से जब उसको IP एड्रेस की रिक्वेस्ट मिल जाएगी तो ब्राउजर क्या करेगा, सेंड द रिक्वेस्ट फॉर वेब पेजेस टू द वेब सर्वर यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल। इसमें HTTP प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर भी आपको हमेशा याद रखना, दैट इज 80, which specify the way the browser and web server communicates. Okay, then web server receive the request using HTTP protocol. अभी पहले क्या था, जब रिक्वेस्ट आई थी तब भी HTTP यूज हो रहा था, राइट। जब क्लाइंट की तरफ से आई, जब सर्वर ने रिक्वेस्ट को रिसीव किया तब भी HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू ही उसको जो रिक्वेस्ट है वो रिसीव होगी। ओके, देन इट सर्च फॉर द रिक्वेस्टेड वेब पेज, जब उसको मिल जाएगा देन it will send back to the web browser and close the HTTP connection. बेसिकली कनेक्शन बनता है, जब आप किसी वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट करते हो तो एक HTTP कनेक्शन बनेगा। ओके,
कैसे बनेगा? ब्राउजर क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा वेब पेज के लिए किसी एक नंबर, जो कोई जैसे आपने http://abc.com किया है, वेब सर्वर पे रिक्वेस्ट करेगा, राइट? कहां पे रिक्वेस्ट करेगा? वेब सर्वर पे, यूजिंग HTTP कनेक्शन, ओके। और जब वेब सर्वर को रिक्वेस्ट मिलेगी तो HTTP के थ्रू ही सर्च करेगा, वो वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट करेगा, और जब उसको वेब पेज मिल जाएगा ब्राउजर पे तो वो HTTP, मतलब जब आपके पास वो http://abc.com आ जाएगा तो जो HTTP कनेक्शन है जो उस पेज को रिक्वेस्ट करने के लिए यूज हुआ है, दैट कनेक्शन विल बी closed. Okay, now the web browser receive the web page, it interpret it and display the content of web page in the web browser window. So basically क्या है? वेब ब्राउजर ने रिक्वेस्ट किया वेब पेज के लिए, राइट? तो इंटरनेट के पास रिक्वेस्ट किया, उसने क्या किया? वेब सर्वर को रिक्वेस्ट किया वेब पेज के लिए। वेब सर्वर ने देखा कि पेज कहाँ है, वेब पेज, उसने क्या किया? रिस्पॉन्स बैक किया इंटरनेट के थ्रू, और जो अपना आप बोल सकते हैं सर, उसने रिप्लाई कर दिया क्लाइंट को। ये देखिए, रिक्वेस्ट फॉर द वेब पेज यहाँ गया, आफ्टर द रिक्वेस्ट फॉर द वेब पेज सर्वर के पास गया, और ये जब रिक्वेस्ट गया और आया तो क्या होगा? एक कनेक्शन बनेगा, दैट इज HTTP कनेक्शन। और जैसे ही यहाँ पे पेज डिस्प्ले हो जाएगा, दैट HTTP कनेक्शन विल क्लोज्ड। ओके, ब्लूमिंग ग्लोबल, कैसे जो है हमारा जो इंटरनेट है वो ग्लोबली इतना ब्लूम हुआ है, राइट? सो बेसिकली द फर्स्ट वेब सर्वर केम ऑनलाइन इन दिसंबर 1991 इन द US। कब सबसे पहले जो वेब सर्वर ऑनलाइन आया था? 1991 में। एट दिस टाइम देयर वर ओनली 2 टाइप्स ऑफ ब्राउजर वर देयर। उस टाइम पे ओनली 2 ही ब्राउजर होते थे, द ओरिजिनल डेवलपमेंट वर्जन विच वॉज अवेलेबल ओनली ऑन नेक्स्ट मशीन, एंड द लाइन कोड ब्राउजर विच वॉज इजी टू इंस्टॉल एंड रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म बट वॉज लेस यूजर फ्रेंडली एंड हैड लिमिटेड पावर। 2 वर्जन होते थे, जो ओनली नेक्स्ट मशीन पे ही यूज होता था, और एक और होता था जो लाइन मोड ब्राउजर होते थे, जो कि इंस्टॉल करना तो इजी होते थे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम उनको इंस्टॉल कर सकते थे, बट वो इतने यूजर फ्रेंडली नहीं होते थे, ठीक है? फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट बैनर ली आस्क्ड अदर डेवलपर बाय द इंटरनेट टू कंट्रीब्यूट टू इट्स डेवलपमेंट। ओके, उसको पता था कि ये मेरा जो सिस्टम है, जो मेरा बोल सकते हैं आप वेब सर्वर है, वो इतना ज्यादा फ्रेंडली नहीं है, तो उसने अपने जो कलीग्स थे उनको बोला कि वो उनको हेल्प करें डेवलपमेंट के लिए। So many developer wrote browser for the X Windows system. The first web server outside Europe was introduced as standard university in the US in 1991. In the same year, there were only 10 known web server across the world. तो उस टाइम पे कितने वेब सर्वर थे across the world? टोटल 10 वेब सर्वर थे। ओके, ऑलवेज रिमेंबर कि उस टाइम पे 1991 पे 10 सर्वर थे। ओके, लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ 1993 द नेशनल सेंटर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस द फर्स्ट वर्जन ऑफ इट्स Mosaic version. It ran on the X Windows system environment. Later, the NCSA released version of the PC and the Macintosh environment. Macintosh environment कौन से हैं? जो आईफोन्स वगैरह में वो होते हैं, राइट? विद द इंट्रोडक्शन ऑफ यूजर फ्रेंडली ब्राउजर ऑन दिस मशीन द www स्टार्टेड स्प्रेडिंग ट्रेंडमसली अकॉर्डिंग द वर्ल्ड। उसके बाद क्या हुआ? जो हमारा www है वो इतनी वास्ट तरीके से फेमस हुआ वर्ल्ड में, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि वो बहुत ही यूजर फ्रेंडली था। ओके, इवेंचुअली द यूरोपियन कमीशन अप्रूव्ड इट्स फर्स्ट वेब प्रोजेक्ट इन द सेम ईयर विद स्रेन एज वन ऑफ इट्स पार्टनर। सबसे पहले SCR स्रेन बोल सकते हैं, आई डोंट नो व्हाट हाउ टू प्रोनाउंस दिस, यू कैन सेरन जो भी है, वहां पे सबसे पहले ही जो इसका बैनर ली ने वहां पे ही काम स्टार्ट किया था, क्योंकि जो बैनर ली था उस टाइम पे वहीं पे काम करता था। ओके, तो फिर Saron made the source code of www available on the royalty free basis and thus made it free software. उसने क्या किया? उसी ने क्या किया था? इसको रॉयल्टी फ्री बेसिस पे फ्री कर दिया था, मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बना दिया था। रॉयल्टी फ्री मींस वन हैज द राइट टू यूज कॉपी राइट मटेरियल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विदाउट पेइंग एनी रॉयल्टी और लाइसेंस फी। मतलब उसको यूज करने के लिए आपको कोई कॉपीराइट का पंगा नहीं है और कोई फीस या रॉयल्टी देने की जरूरत नहीं है। ओके, Thus had allowed people to use the code and web protocol for free. The technologies that were developed to make the www become an open source to allow people to use them for free. Eventually, people started creating website for online business to provide information and other similar. इस बस जैसे जैसे वो आगे जाता गया वैसे वैसे फिर ये वेबसाइट जो है वो ऑनलाइन बिजनेस के लिए यूज होने लगे, बहुत सारी चीजों के लिए वो यूज होने लग गया, ठीक है? एट द एंड ऑफ द 93 दे वर मोर देन 500 वेब सर्वर। उसके बाद 1993 तक तो पहले कितने थे? ओनली 10 थे, अभी कितने हो गए थे? 500 वेब सर्वर हो गए थे, ठीक है?
उसके बाद 1994 में द फर्स्ट इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट सेल एंड वाज अटेंडेड बाय अराउंड 400 यूजर एंड डेवलपर एंड पॉपुलरली नोन एज द वुडस्टॉक ऑफ द वेब। उसके बाद जो उसने ब्लूम पकड़ा है, तो अभी तक एज यू नो अभी तो इतना ज्यादा हो गया है कि हर एक सेकंड में, हर एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम में जो है वो इतना ज्यादा डेटा जो है उस पर ऐड होता जा रहा है, इतना ज्यादा डेटा ऐड होता जा रहा है कि हमें जैसे कि हमने पहले पढ़ा ग्रुप जैसे कंसेप्ट लाने पड़े, क्योंकि डे टू डे जो हमारा डेटा है दैट इज इंक्रीजिंग। ओके, आफ्टर दैट हाउ द वर्ल्ड वाइड वेब वर्क्स, कैसे जो है वर्ल्ड वाइड वेब वर्क करता है। Now we have understood that www is a collection of website connected to the internet so that people can search and share information. Now let us understand how it works. कैसे exactly the world wide web works. Okay, so basically the web work as per the internet basis client server format. How it is worked? Actually it is work on client server format. So basically क्या होता है, जो वेब ब्राउजर होता है that request web server for any web page, right? After that web server क्या करता है, it serve the request of web browser. Okay, so basically क्या होगा, अगर किसी हम लोग क्या करते हैं वेब ब्राउजर पे ही, जैसे हम लोग गूगल क्रोम हो गया, इन चीजों पे ही हम लोग जो एड्रेस है वो डालते हैं ना किसी चीज को ढूंढने के लिए। तो वेब ब्राउजर कहाँ से वो चीज ढूंढ के लाता है, वो जाता है he goes to web browser for the request of web server, for any request he goes to the web server and web server will serve the request. Okay, so the web work as per the internet basis client server format as shown in the following image. The server store and transfer web pages or information to user computer on the network when requested by a user. Okay, so a web server is a software program which serve the web page requested by web user using a browser. The computer of user who request document from the server is known as client. वही मैंने आपको बोला, द कंप्यूटर ऑफ अ यूजर, जिसने किसी वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट किया है, किसी डॉक्यूमेंट के लिए रिक्वेस्ट किया है, दैट इज नोन एज अ क्लाइंट. ओके, एंड ब्राउजर विच इज इंस्टॉल ऑन द यूजर कंप्यूटर अलाउ यूजर टू व्यू द रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स. ओके, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, जो अपना वेब ब्राउजर होता है उस पर जो हमने रिक्वेस्ट भेजा है और उसका जो रिस्पॉन्स आता है वी कैन सी ऑन दैट वेब ब्राउजर. ओके, ऑल द वेबसाइट आर स्टोर इन वेब सर्वर, जितने नंबर ऑफ वेबसाइट्स हैं वो सारी जो होती हैं वेब सर्वर पर स्टोर होती हैं. जस्ट एज समवन लिव्स ऑन द रेंट इन अ हाउस, अ वेबसाइट ऑक्युपाइज अ स्पेस इन सर्वर एंड रिमेन स्टोर इन इट. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग किसी के घर में जाके रेंट पे रहते हैं, राइट? सो जो घर हुआ दैट इज वेब सर्वर एंड जो वेबसाइट हुआ वो हो गए हम रेंटेड अपार्टमेंट वाले. ओके, सो वेब पेजेस एंड वेबसाइट ओनर हैज टू पे होस्टिंग प्राइस. और जैसे हम लोग रेंट देते हैं वैसे ही साइट को जो वेबसाइट्स होती है उनको अपनी होस्टिंग प्राइस देना पड़ता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझे ना आप लोग, लाइक हम लोग किसी के घर पे रेंट पे रहने जाते हैं तो हम लोग फ्री थोड़ी रहते हैं, हम लोग उसको रेंट पे करते हैं ना. तो वैसा ही यहाँ पे है, जो वेब सर्वर है उसको आप बोल सकते हो जो पूरा घर है, वहां पे रेंटेड अपार्टमेंट्स बने हुए हैं जहां पे हम लोग जाके रहते हैं. वैसा है, वैसे ही वेबसाइट जो है वो रेंटेड अपार्टमेंट की तरह काम करती है और वहां पे रहने के लिए फीस पे करती है, राइट? The moment you open the browser and type the URL in the address bar and search something on Google, the www start working. जैसे ही आपने ब्राउजर ओपन किया और कोई URL डाला तो वैसे ही जो www है वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है. ओके, there are three main technology involved in transferring information from server to client. This technology include HTML and HTTP and web browser. ओके, तो ये देखिए नीचे आप देख रहे हैं जो भी अपना डेस्कटॉप है, पीसी है, लैपटॉप है, वो किसको इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होके किसके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, वेब सर्वर के साथ. तो जो हम यूआरएल डालेंगे वो यहाँ वेब ब्राउजर पे डालेंगे ना, कोई भी यूआरएल www.abcxyz जो भी आपको सर्च करना है वो आप यहाँ पे डालेंगे, राइट? एंड इट विल गो टू वेब सर्वर. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्या रिसाइड करता है, वेब ब्राउजर, राइट? सो वेब ब्राउजर विल गो टू वेब सर्वर एंड वेब सर्वर विल एक्सेस दैट पेज फ्रॉम डेटाबेस and displayed on web server, so you can access that www whatever xyz website. Okay, so that's it for the www. Okay, so अगर आपको इसमें कोई डाउट हो so you can ask me anytime, you can ask me in comment. Okay, so that was all about the www. इसका बहुत वास्ट है, आगे अगर आपको like if you want to cover HTML markup language or HTTP, what is HTTP, what are the browsers, ब्राउजर भी एक नहीं है, देयर आर मैनी टाइप ऑफ ब्राउजर्स, राइट? सो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा वास्ट है. अगर आपको
लाइक और आगे स्टडी करनी है, सो यू कैन यूज इंटरनेट. बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, आप बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ सकते हो. ठीक है. So till then, bye, take care, and if you have any query, any question regarding this www, you can ask me in comment box. Okay, so till then, bye, take care.